लीडर है। ऐसे ही हम सभी लोगों के एक मेंटर है जो हम सभी लोगों को गाइड करके आगे ले जाने के लिए कमिटेड है, जिन्होंने इंडसजीवा में एक ऐसा पोजीशन हासिल किया है जो पोजीशन वो खुद अभी ले रहा है, वन एंड ओनली रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट करके दिखाया है। ही इज द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग से एक लैम्बोर्गिनी अचीवर है, और जिन्होंने बहुत सारे यूथ एंड बहुत सारे लोगों के ड्रीम में लैम्बोर्गिनी को भी ऐड किया है। ओके, सो ऐसे ही एक लीडर हम सभी लोगों की मेंटर को इनवाइट करने के लिए मैं जा रहा हूं। उनसे पहले फिर से मैं आप सभी को बोलूंगा, आपका नाम करेक्ट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग वीडियो ऑन करके ये सेशन को देखेंगे तो हम लोग भी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। और आप लोगों का नाम करेक्ट करने के लिए 1 मिनट आप सभी लोगों के टाइम है, और उसी के साथ आपका कोई टीम मेंबर्स भी नहीं आया है तो उनको भी कॉल करने के लिए 1 मिनट का ही टाइम है। और उसी के साथ हम लोग एक वीडियो देखेंगे, और वीडियो के साथ साथ हम लोग सर को वेलकम करेंगे। आर यू रेडी? Are you ready? Okay, so let's see the video. After the video, we are going to welcome our mentor. Okay, just enjoy this video. IndusViva as a company has to evolve further to contain Prem Kumar of 2031. बिकॉज इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिल से बहुत अच्छे हैं और सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस का दूसरे लीडर को अलग और मुझे अलग, ऐसा नहीं, हमेशा हम सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं, जो कि प्राउडली बोल सकते हैं कि ऐसा लीडर हमको लकीली मिला। Whatever is coming in his life, he knows it 3-4 years back only that this is going to happen. He's such a well-planned man. सर का जो क्लियरिटी वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया मेरा लाइफ में, बिकॉज इतना क्लियरिटी मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं देखा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. वाह वाह, व्हाट ए पावरफुल वीडियो। मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ लोगों के स्क्रीन में आग बरस रहा है, राइट। ये जो वीडियो ही इतना पावरफुल है, और वीडियो में जो कार है वो कितना पावरफुल होगा, और उस कार के अंदर जो बैठा होगा वो कितना पावरफुल होगा, और वो कार का जो ओनर है वो कितना पावरफुल होगा। एक बार आप लोग सोच के देखिए। मैं आप सभी लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए, with excitement, with a wonderful clap, I would like to invite on the spotlight our beloved mentor, Mr. Prem Kumar Parthasarathi sir. So welcome to Spotlight, sir, and good morning.
Good morning, Vishnu. Thank you for the fantastic beginning of this show, Webathon Series 3. Thank you. Everybody, please clap for Vishnu for the wonderful, job for welcoming me. Thank you, Vishnu. You have been amazing. Lovely energy. Thank you, sir. Thank you. Fantastic. Okay, so good morning, आप लोग. मुझे लगता है, I think Vishnu, everybody is very excited, right? Yes, sir. Yes. Acha, we have close to 500 participants today in this webathon, and Vishnu, please have an eye on the waiting room. Many people are in the waiting room. Please allow them inside. Acha, क्या मेरी आवाज ठीक है, Vishnu? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Fantastic. Okay, so good. Let me go to the chat box and see here ki, what is the position of everyone here. Okay, many people are wishing good morning to me. Okay, fantastic. Keep the messages coming in. मैं आज ये पूरा chat box जो है इसके अंदर जो messages होंगे, I'll keep seeing that. Along with that, I want all of you to participate very actively. Lovely energy, बहुत बढ़िया energy है यहाँ पर आज. Okay, so today is Webathon's another session जहाँ पर we are going to talk about you and your success and your journey and your story. Okay, so it's very important कि हम in this journey, इस journey के अंदर हमारे mindset जो है उसको बढ़िया तरीके से हम maintain रखें. So I can see a lot of people here. We have Venugopal Pujari, we have Girish from Mangalore, South, Dakshina Kannada, that is South Canada. We have Sharath here from coastal, Upper Andhra Pradesh, right? Then we have Harish from Bangalore. Good morning, Harish. We have Komal Saini, Star 500. Good morning, madam. Then we have Bhanumati Narayan, we have Sadashiv from North Karnataka, Lokesh from Andhra Pradesh, Saurabh Agarwal, Delhi se. Good, fantastic. Cyril John, Mangalore. Good morning, Cyril sir. Good morning. So आप लोगों का जो participation है, this gives me the fuel to go forward, fuel to, be on the move, right? Thank you very much for your encouragement, guys. Okay, 84 messages I have not opened. Let me see. Okay, everybody's wishing good morning. Thank you. Thanks for the love. Let the energy keep flowing like this. ठीक है. Last week, what was the subject? हम लोग जो बात कर रहे थे, अगर याद है, Jasmeet Sodhi madam, good morning. Chanapa Bangalore, good morning. So last week का subject जो है, please post that in the chat box. Okay, everybody's got the answer. The answer is focus. So last week हम लोग बात कर रहे थे focus के बारे में. Let me give you some basic today before we go into the subject. Point ये है, आज मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूं कि there is no shortage or I would say scarcity मोटिवेशन की या मैसेजेस की या मतलब इंफॉर्मेशन की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई स्कैर्सिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, right? In the market, if you go to Facebook, Instagram, WhatsApp, many बहुत सारे messages आते रहते हैं ऐसे, जैसे many quotes and things like that. आज दुनिया की सारे knowledge आपके हाथों पे हथेली में, मतलब you have it in your smartphone. आप टाइप करोगे about focus, you will get maybe 1 lakh posts in in Google. 1 lakh links you will get, आपको मिल जाती है वहां पर. अगर आप सक्सेस के बारे में टाइप करोगे तो you will get so many things, so many videos in YouTube about success. So point ये है, आज नॉलेज की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करने वालों की कमी है. नॉलेज को अप्लाई करने वालों की कमी है. So I'm seeing that ki last 20-25 years in the e-age, internet age, this is one thing which is happening. Ki world is opening up for everything. Everything is today available. A lot of things are happening today on the internet. Knowledge की कोई कमी नहीं है, लेकिन knowledge को apply करने वालों की कमी है. And I always quote this wherever I go: knowledge without application is equal to garbage. फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा आज, नॉलेज जिसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं वो गार्बेज के बराबर है, कचरे के बराबर है. तो वी शुड नॉट बिकम पीपल हु आर कीप ऑन एक्वायरिंग नॉलेज, बिकॉज वी विल बिकम पीपल विथ लॉट ऑफ गार्बेज. तो वी मस्ट बिकम पीपल हु आर अप्लाइंग नॉलेज. सो द पीपल हु आर अप्लाइंग द नॉलेज, दे बिकम द एक्सपर्ट्स, एंड फाइनली वो लोग चैंपियन बनते हैं. तो
We have many sessions, many training programs, a lot of things available in Vibrant Viva. उसको भी आप सुनिए, उससे भी अप्लाई करिए, and you can be better than others. बाकी लोगों से you can be ahead when you apply the knowledge what you gain faster than others. जो भी आपके साथ सीख रहे हैं, आज हमारे साथ 520 people almost हैं आज हमारे साथ, और भी लोग जुड़ रहे हैं. तो इन लोगों में से how can I be ahead? मैं कैसे आगे रह सकता हूं, मैं कैसे इन लोगों से बेहतर बन सकता हूं. सिंपल सा फंडा है, सबके साथ सीखो लेकिन सबसे पहले अप्लाई कर लो. सबके साथ सीखो लेकिन एप्लीकेशन करो सबसे पहले. दिस इज व्हाट आई डिड. मैं अपलाइन अभिलाष थॉमस जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, उनके सेशंस में बैठ रहा था, और बाकी लोग क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, बिकॉज आई नो दैट इट्स अबाउट मी एंड माई सेल्फ, बिकॉज सक्सेस एक पर्सनल फंडा है, ये अंदर का मामला है, राइट. दिस इज आवर इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं बाकी लोगों के साथ अटेंड कर रहा था ट्रेनिंग, लेकिन अभिलाष जी जो बता रहे थे उसको झट से मैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी एक्टिविटीज में उससे मैं अप्लाई कर रहा था. एंड दैट इज हाउ आई वाज एबल टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट. और यहाँ पर फिर से वो पॉइंट जो है आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू इन एनी ट्रेनिंग सेशन, उससे अप्लाई करने से आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे. दैट इज द one of the key points which I want to remind you today, especially when it comes to learning. Okay, so don't become a person with so much of knowledge कि मैं ये सीख लिया, वो सीख लिया, सब कुछ सीख लिया. बढ़िया है, आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया तो that becomes a fantastic outcome in your personality. So whatever you're learning in Webathon, उसको भी मैं बता रहा हूँ, apply it in your life. Apply it in your life. Last week, I know we were talking about this. Okay, अच्छा. So the power of focus. And today we are going to talk about another very important element. मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ. That is the ownership in your business. Ownership in your business. Okay, क्योंकि जब वेबाथॉन की चर्चा हम लोग कर रहे थे और टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये टाइप किया था इस चैट बॉक्स पे कि हमें जो टॉपिक्स चाहिए उसमें से वन ऑफ द टॉपिक इज ओनरशिप इन बिजनेस. ओके, तो आज जो टॉपिक है दैट इज अबाउट योर ओनरशिप इन योर Viva business, in your Viva journey. तो चलिए, let's understand what is this ownership in business. Basically, ownership का मतलब ये होता है कि हम इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले अपने आप को not as an employee, not as a just maybe I also joined this business, ऐसे एटीट्यूड को हटाकर हम इस बिजनेस को एक ओनर की तरह हम उसे देखना शुरू करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओनरशिप इन बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, दोनों का बिहेवियर अलग होता है. जो आदमी इसको ओनर की तरह देखता है, उस आदमी का बिहेवियर, रेस्पॉन्स, सब कुछ बढ़िया रहता है. जो आदमी इसको ओनर की तरह लेता है, जो आदमी इसको ऐसे ले रहा है कि जैसे ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, मेरे अपलाइन ने कुछ मुझे ऐसे ही बता दिया तो उसके अंदर मैं भी आ गया, सो आई एम हियर लाइक जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. तो क्या होता है, दैट बिकम्स लाइक यू आर नॉट ओनिंग द बिजनेस. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू हैव अ फोन इन योर हैंड. आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है. यस, वेरी गुड. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर स्मार्टफोन? आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं? तो in this itself you will be able to understand what is ownership. So इस मोबाइल को कैसे, for example, this is my phone. Okay, I purchased this recently. इसके लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया. Because this is a little expensive phone, so I made an insurance for this. Second thing, इसके लिए मैंने I have put a tempered glass. Okay, so that when it falls down, it should not break. So tempered glass I have put, the screen guard. And then I have put a cover. This is like, it's having one external cover or transparent cover hai, taki this does not get damaged in the side. Or I have also put backside ek scratch guard bhi maine lagaya iske liye. Okay, and I have also invested money for the extended warranty.
अगर ये पानी में गिर जाए, नीचे गिर जाए, तो आई विल बी एबल टू गेट ए न्यू फोन, ब्रांड न्यू फोन। सो ये सब कुछ बंदोबस्त मैंने इस फोन के लिए कर रखा है। दैट इज अबाउट दी बेसिक थिंग्स। लेकिन आई एम ऑलवेज wherever I go outside, जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं पर शॉपिंग के लिए, या wherever I go to a hotel or when I go to meet someone, I always make sure that phone is with me, and इसका जो 100% ओनरशिप I take। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग आउट विथ लाल सिंह, सो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा लाल सिंह मेरा फोन का ख्याल रखना, ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं इसको ख्याल मैं खुद अपने आप रखता हूँ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द ओनरशिप ऑफ द फोन। कितने लोग अपने फोन को भी ऐसे संभालते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। फंटास्टिक। फोन को संभाला तो लाइफ जिंगालाला, राइट? राइट। फोन को संभालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को इसी तरह संभालना। सो इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस जो है, ये किसका बिजनेस है? इज इट द बिजनेस ऑफ अपलाइन? अगर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ योर अपलाइन, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दिस इज अ टोटली रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स योर बिजनेस। क्योंकि जब तक आपको लग रहा है ये जो बिजनेस है ये अपलाइन की बिजनेस है, आप इसके अंदर 100% नहीं रहने वाले। यहां पर बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। सिराजुल हक बोल रहे हैं मेरा बिजनेस। विपिन कुमार इज सेइंग माय बिजनेस, एंड वी हैव शारदा वारघाने, शी इज सेइंग माय बिजनेस। शिवश्री इज सेइंग दिस इज मेरा बिजनेस। बोरनाली चैटर्जी भी कह रहे हैं कि माय ओन। फंटास्टिक। So keep the messages flowing. मैं पढ़ रहा हूँ, right? So Indra Nepal is saying my own business and my business, my responsibility. Who's that? My business, my responsibility. That is Kakumoni Bora from okay, Assam, Europe. Ruby, she's also saying my business, my phone. Acha. So same way, today onwards, just the way you think that this is my business, this is my mobile phone, वैसे आपको अपनी Viva business को भी अपना समझना चाहिए। ओके, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक इंसान जो छोटा सा जो मोबाइल फोन को इतना सीरियसली अगर वो उस फोन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी उठाता है, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर बिजनेस? तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना होगा, ओनरशिप इज वन साइड, द अदर साइड, उसकी दूसरी तरफ है लीडरशिप। सो लीडरशिप इज इक्वल टू ओनरशिप, ओनरशिप इज इक्वल टू लीडरशिप। तो एक मालिक, बिजनेस के मालिक, जो आदमी एक बिजनेस करता है, उसके जो मालिक होता है, वो हमेशा उसके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में लगे रहता है। फर्स्ट पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, आर यू प्रोटेक्टिंग योर वीवा बिजनेस? अच्छा, मुझे कैसे अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। जैसे इस देश के अंदर अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है फॉर द कंट्री, इस देश के अंदर देयर आर द सोल्जर्स, स्पेशली द नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री, राइट? वो डिफेंस का मतलब क्या होता है? वो हमारे कंट्री को डिफेंड करते हैं, यानी कंपनी को हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, पॉइंट नंबर 1, आपको हमेशा अपने स्पेक्टिकल्स पहनना होगा, जैसे फोकस्ड, एंड अपनी बिजनेस के अंदर जहां पर भी अगर डैमेजेस हो रहा है बिजनेस के अंदर, उस डैमेज को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को उस डैमेज से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो जैसे अ सोल्जर इज गार्डिंग इज कंट्री, आपको भी अपनी बिजनेस को गार्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो आर यू प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस? सो बिजनेस कहां पर डैमेज हो सकता है? मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं। आपकी बिजनेस वहां पर डैमेज होगा जहां पर नॉलेज की कमी हो, जहां पर सिस्टम की कमी हो, जहां पर एजुकेशन की कमी हो, जहां पर प्रॉपर गाइडेंस की कमी हो, राइट? सो एज अ लीडर, ओनरशिप का दूसरा एक बैलेंस्ड इक्वल वर्ड है लीडरशिप। तो एज अ ओनर यू हैव टू बिहेव एज अ लीडर, और आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर 24/7, नॉट जस्ट व्हेन यू आर अवेक, 24/7। हाउ कैन यू डू दैट 24/7? आपको अपने बिजनेस के ऊपर हमेशा नजर रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोने के वक्त भी आप बिजनेस पर नजर रखें, इसका मतलब ये है यू हैव टू बी अलर्ट। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके राइट साइड में कोई एक आदमी बिजनेस पे आया, उसके नीचे कोई आया, उसके नीचे कोई आया,
तो जहां तक मैक्सिमम आपके टीम में बॉटम लाइन जो है उसको प्रोटेक्ट करना होगा, बिकॉज दैट इज एन ओपन एंड. इट इज एन ओपन एंड जहां पर डैमेजेस हो सकते हैं. तो always keep an eye on your business and protect your business like a owner, because you are the owner of your business. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बिजनेस में आते हैं और कुछ टाइम के बाद हाथ उठा देते हैं. अच्छा, let me relax, let me forget what is happening. तो हाथ उठाने के बाद क्या होता है, जो होना है वो जल्दी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, एक ऐसे मतलब दो दोस्त लोगों के बीच में ये मजाक कर रहे थे. तो एक इंसान ने कहा, अरे तुम्हें पता है मैं एक बार मैं जंगल में गया था. अच्छा, जंगल में गए तो क्या हुआ? हम ऐसे ही जा रहे थे और अचानक सामने से शेर आ गए. अच्छा, फिर तुमने क्या किया? तो उसने कहा, अरे करने के लिए मेरे पास क्या बचा है, जो भी करना है वो शेर ने खुद कर लिया. राइट? तो वैसे जब आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जो डैमेजेस होना चाहिए इट इज नेचुरल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल. दिस इज अ क्लॉथ. ठीक है, दिस इज द क्लॉथ विच आई वाइप माई goggles. Okay, let me wipe it. थोड़ा सा फॉगिंग हो गया यहाँ पर because of the morning weather. ठीक है, right? I can see better now. तो ये जो कपड़ा जो है दोस्तों, this is like this. अच्छा, so when you drop this, जब आप इसे ड्रॉप करोगे, it is natural कि it is falling down. ये ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. देखिए, इट इज गोइंग डाउन. अरे क्या सर, आप लास्ट वीक आपने ये ग्लास लेके कुछ समझाया, अब ये कपड़ा नीचे गिर रहा है, इसको पकड़ के कुछ समझा रहे. सिंपल सी बात है दोस्तों, बिजनेस इज अ साइंस एंड ऑल्सो अ कॉमन सेंस. सो अगर किसी चीज को ऐसे हम नीचे छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है, बिकॉज दिस इज ग्रेविटी, इट पुल्स इट डाउन. तो इसमें कोई बड़ी साइंस की जानकारी की जरूरत नहीं है. दिस इज कॉमन सेंस. सो सिंपल है, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर बिजनेस, लिसन मी केयरफुली, अगर आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो उसको नीचे की तरफ जाना ही पड़ेगा. सो ग्रेविटी विल पुल इट डाउन. तो स्पेशली क्वाड्रेंट के रेफरेंस में फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, इफ यू आर अ डायमंड, एन एग्जीक्यूटिव डायमंड, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चले जाओगे, तब आपके पास एक सिस्टम होगी, आपके राइट और लेफ्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे जो आपके बिजनेस के अंदर एक्टिवली काम करते रहेंगे. द सिस्टम विल बी वर्किंग. और सिस्टम बेस्ड हो जाता है जब आप लेफ्ट साइड से ES क्वाड्रेंट को छोड़कर B एंड I क्वाड्रेंट की तरफ चले जाओगे. इसका मतलब इंडस विवा बिजनेस में जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड पोजीशन पर चले जाओगे, व्हेन यू बिकम एन एग्जीक्यूटिव डायमंड, उस टाइम पे अगर आपने इसे ड्रॉप किया तो भी ये ऐसे ही रहता है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द ऑर्बिट. मतलब वो जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है स्पेस में, उससे पार करके ऊपर चले जाने के बाद द स्पेस क्राफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल द रॉकेट और व्हाटएवर द स्पेस शिप, व्हाटएवर वी लॉन्च, राइट, इट इज रोटेटिंग देयर इन दैट सेम ऑर्बिट. तो जीरो ग्रेविटी कहते हैं उसके अंदर, राइट, उसको तो उसको पार करके जब ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली द स्पेस क्राफ्ट रिमेन्स इन दैट प्लेस, बिकॉज वहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है. Okay, you cross that and you go into a different orbit. वैसे जब आप डायमंड बनोगे तब even if you are not there, जैसे मैं पिछले 8 महीनों के मतलब अगर 7 months की बात करूं, मार्च से लेकर सितंबर तक, I was not involved in my business. My business was going on and on. जैसे मैं कह रहा था, my business was on. I was not involved in my business. I was totally disconnected. But my business was continuously going on because system has taken over the business. ठीक उसी तरह आपको भी एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल तक अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नीचे गिरने नहीं देना चाहिए, बिकॉज द ग्रेविटी इज देयर. सो द फर्स्ट थिंग इज, एज अ बिजनेस ओनर, ask yourself the question,
वेयर आर द डैमेजेस हैपनिंग इन योर बिजनेस। हमेशा फोकस रहना, हमेशा अलर्ट रहना कि कहां पर बिजनेस के अंदर डैमेजेस हो रहे हैं। एंड एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस लाइक द सोल्जर इज प्रोटेक्टिंग द कंट्री, लाइक अ फार्मर प्रोटेक्टिंग द फील्ड या द क्रॉप्स। आपको भी अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज वन step, or I would say one important responsibility as a owner. So protect your business. So how to protect? Wherever the damages are there, जहां पर भी damages होते हैं आपके business के अंदर, identify those damages. So what are the places it can get damaged? मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां पर नॉलेज की कमी है, जहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सॉल्यूशंस की कमी है, जहां पर लीडरशिप की कमी है, वहां पर डैमेजेस ज्यादा होते हैं। सो यू हैव टू बिहेव एज अ लीडर, यू हैव टू बिहेव एज अ प्रोटेक्टर ऑफ योर बिजनेस। सो गो इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। अगर आप कंट्रोल पे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, या किसी ऑर्गेनाइजेशन एक की कंट्रोल में है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी टीम की मिस्टेक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। लोगों से इंटरैक्ट करते हुए आप अपनी बिजनेस के अंदर जो डैमेजेस हो रहे हैं उससे आप पहचान सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं who is a winner and who is a loser. Very simple. Winners don't do different things, they do things differently. जो विनर होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, बिकॉज वो लीडर होते हैं। लीडर का एक क्वालिटी है प्रोएक्टिव रहना। डोंट बी रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब ये है, जब कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आने के बाद अगर आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, देन यू आर नॉट अ प्रोएक्टिव लीडर। लीडर प्रोएक्टिव कहलाता है तब जब वो अपनी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आने से पहले उससे पहचानता है और उसको वो एड्रेस भी करता है, उसके लिए अपनी बिजनेस, अपने टीम मेंबर्स को तैयार करके रखता है। उससे हम कहते हैं प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आप गुवाहाटी ऑफिस पे गए और गुवाहाटी ऑफिस पे आपने ऐसे बात कर रहे थे और वहां पर आपको सुनने में आया कि आई केयर का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ चुका है और आगे 2-3 हफ्तों के लिए आई केयर का शॉर्टेज होने वाला है। तो तुरंत एज ए लीडर आपको क्या करना होगा? एक वीडियो मैसेज बनाओ, एक ऑडियो बनाओ, जिसके अंदर आप अपने टीम को बताओगे, माय डियर टीम मेंबर्स, मैं आपका अपलाइन रूबी एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह, आपका जो नाम है वो बताकर आप बताएंगे मुझे ये पता लगा है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए रूबी मतलब आई केयर प्रोडक्ट जो है उसकी शॉर्टेज होगी। अगर आप में से कोई है जिसको लग रहा है कि आपके पास आई केयर का शॉर्टेज होगा, तो प्लीज प्लेस एन ऑर्डर फॉर आई केयर इमीडिएटली। मैं आपके लिए यहां से प्रोडक्ट पिकअप करके आ सकता हूं। दिस इज अ प्रोएक्टिव लीडर। मैं आपको रिएक्टिव लीडर का बताता हूं ऑप्शन, एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं। आपको समझ में आ गया कि आई केयर इज गोइंग टू बी शॉर्ट, फिर आपने कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया आप, फिर उसके बाद आपकी टीम से फोन्स आने लगते हैं, सर आई केयर मेरा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, उसका स्टॉक खत्म हो चुका है, आई एम नाउ सफरिंग, मेरे कस्टमर जो है वो बहुत नाराज हैं मेरे से। So then you are like going all around कि how to solve this problem. So this is one example. इस प्रकार के हजारों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। वन मोर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर हरिप्रसाद, जो हमारे एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड है। कितने लोग सुनना चाहते हैं इस एग्जाम्पल को? क्योंकि यहां पर कोई किताब पढ़कर मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द रियल लाइफ स्टोरी। यहां पर लेट मी टेक हरिप्रसाद जी, अगर है यहाँ पर हरिप्रसाद जी, अच्छा हरिप्रसाद इज नॉट हियर, बट लेट मी गिव दैट एग्जांपल वेरी वेरी ब्यूटीफुली। जब मार्च में ये प्रॉब्लम हुआ था इंडस विवा के अंदर एंड ये प्रॉब्लम के बारे में पता चला, सो व्हाट हैपेंड कि सब लोग पैनिक थे, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और किसी ने हरिप्रसाद जी को बता दिया कि मार्च 6 एक प्रेस मीट होने जा रहा है जिसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी सो एंड सो एलिगेशंस इंडस विवा कंपनी के ऊपर। तो ये तो होते रहता है, तो राइट, इट्स ओके। सो हरिप्रसाद जी ने उसको कैसे हैंडल किया? मार्च 6 जो है
ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा था प्रेस मीट इंडस विवा के बारे में, गलत एक एलिगेशन जो एक अफवाह, एक एलिगेशन जो फैलाने वाले थे अथॉरिटीज, तो उसके बारे में हरिप्रसाद जी को पता चल गया। तो वो प्रेस मीट होने जा रहा है March 6 3 बजे या 3:30 बजे शाम के वक्त। तो उन्होंने क्या किया, अपने टीम को बुला लिया था सुबह 10-11 बजे जूम मीटिंग पर। तो उन्होंने सब लोगों को पहले से बताकर रख दिया कि दोस्तों आज शाम को एक इस प्रकार का प्रेस मीट होने जा रहा है, तो आप घबराइएगा मत, आप सावधान रहिए, जस्ट बी अलर्ट ऑफ दिस। और इसके बारे में अगर आपको कोई पूछता है आपकी टीम के अंदर, तो बता देना कि हमें ये पहले ही पता चल गया था। तो इस प्रकार हरिप्रसाद जी ने क्या किया था, अपनी टीम को अलर्ट रखा था। अब देखिए हरिप्रसाद जी के जैसे बाकी लोगों को भी ये मैसेज आया कि आज शाम को ये प्रेस मीट होने जा रहा है, तो बाकी लोगों ने क्या किया, वो घबरा गए, वो डर गए, उनको पता नहीं क्या करना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, कुछ लोग नॉट रीचेबल हो गए, राइट। जो लोग नॉट रीचेबल होते हैं उनका बिजनेस भी नॉट रीचेबल हो जाता है दोस्तों, right? So this is one classic example of our fantastic leader in our organization, one of the finest leaders हरिप्रसाद जी, जिन्होंने अपनी टीम को क्राइसिस मैनेजमेंट की एक सिचुएशन में बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी टीम को मैनेज किया। सो एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू बी प्रोएक्टिव टू आइडेंटिफाई द डैमेजेस हैपनिंग टू योर बिजनेस। अब चलिए आपकी बात करते हैं, यहां पर मेरे जो प्यारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, आप जो भी रैंक पे हैं, स्टार 250, स्टार 500, स्टार 1000, व्हाटएवर जो भी रैंक है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट। आस्क योरसेल्फ, आज अपने आप से आप पूछ लीजिए, वेयर एम आई, यू नो, वेयर इज माई बिजनेस गेटिंग डैमेज्ड। मेरा खुद का जो बिजनेस है वो कहां पर डैमेज हो रहा है। अब मैं एक शॉकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं यहां पर, राइट? दोनों कान खोलकर सुनिए। कभी कभी हमारे बिजनेस की सबसे बड़ा डैमेजर हम खुद होते हैं। कभी कभी हमारे बिजनेस के डैमेजर हम खुद होते हैं, क्योंकि जब हम सिस्टमैटिकली बिजनेस को नहीं बिल्ड करते हैं, जब हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस्ड नहीं रहते हैं, जब हम अपने टीम के जो प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व नहीं करते हैं, जब हम खुद अपने माइंड को पॉजिटिवली संभाल नहीं पाते हैं, और जब हम खुद अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं, जब हम खुद अपने बिजनेस का ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो अपने बिजनेस के सबसे बड़ा डैमेजर हम खुद बनते हैं। कभी कभी मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ कहीं रिसोर्ट पे चले जाता हूं, होटल पे जाता हूं, या कहीं पर ट्रैवल करता हूं, वहां पर कोई मैनेजर रहता है जो उस बिजनेस को, जैसे होटल में जाते हैं तो होटल के मैनेजर होते हैं, या कोई बैंक में चला गया बैंक का मैनेजर, या कोई भी हो सकता है, जब वो अपनी बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहा होता वहां पर, तो मेरे टीम मेंबर्स के साथ मैं मजाक में ये कहता हूं, हाँ इनसे मिलिए, ये है इस एरिया के या इस दुकान के, इस बिजनेस के डैमेजर हैं। मैनेजर के जगह पे मैं डैमेजर कहता हूं because instead of managing the business they are damaging the business। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, are you manager? Of course manager का मतलब होता है leader, in our business we call leaders, so are you managing your business or you are damaging your business? जैसे बिजनेस पे फोकस नहीं रखने से भी कभी कभी बिजनेस डैमेज हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स को सही वक्त पे सॉल्व नहीं करने से भी डैमेज ज्यादा हो जाता है। कभी कभी लोग अपने अपलाइन के लिए वेट करते रहते हैं, हाँ सर ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, इसका सोल्यूशन क्या है? अरे वेट करो, मैं अपलाइन के लिए वेट कर रहा हूं। अच्छा अपलाइन किधर है? अरे वो उनके अपलाइन के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा तो सारे के सारे LOS में 100 लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे ना, जो लोग अच्छा प्रेम सर को पहले आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा अरे आईपल्स बॉटल ओपन करके पीने के लिए या आई केयर बेचने के लिए प्रेम सर को आने की क्या जरूरत है? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप खुद सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे कुछ लोगों ने 5, 6, 7 मंथ्स उन्होंने वेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं बाहर आने के बाद अब 2 महीने हो गए, अभी भी वेट कर रहे हैं। चलो वेट करेंगे दोस्तों,
By waiting, nothing will happen. Don't wait and watch. Don't be people who are waiting for things to happen. Instead, take up the ownership and make things happen. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में whatever problems and challenges are coming, उसे सही टाइम पर आइडेंटिफाई करना और उसे फिक्स करना. Who is an entrepreneur? An entrepreneur is a problem solver. So आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे उतने ही जल्द आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे. सो आज से आप शिकारी बनेंगे. क्या बनेंगे आप? शिकारी. राइट? आपकी टीम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ढूंढ निकालिए. हंट डाउन द प्रॉब्लम्स. आप तक प्रॉब्लम आने के लिए इंतजार मत करना. आप तक प्रॉब्लम आने तक इंतजार मत करना. खुद निकल पड़ो. जहां पर भी आपकी टीम में प्रॉब्लम्स है उसकी शिकार करने के लिए निकल पड़ो, क्योंकि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. मैं आपको एक चीज आज बताना चाहता हूं. The more you solve the problem, the more confident you become about yourself and about your skills and about your business. जितने जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट अपने आप पर, अपने बिजनेस पर, अपनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के पर आप बनोगे. सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू गो एंड सॉल्व मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम मेरे लाइफ में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आज तक जो मैंने फेस किया, दैट इज लास्ट 6-7 months फ्रॉम द मार्च 2021 टू सितंबर. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई हैव फेस्ड. मैं आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बाद द एंटायर कंपनी हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट, and they are more clear about the legal matter. All the people who were affected by this problem, including me, हम सब लोग बहुत alert हो गए हैं. We have become more confident about handling this kind of a problem. तो आपको भी पता रहना चाहिए, whatever problem is coming today onwards, please write down in your diary, in your subconscious mind, in your belief कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. प्रॉब्लम का मतलब होता है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मौका है, एक सीढ़ी होती है. दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेप टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल. सो एक्सपर्ट कौन कहलाता है? एक्सपर्ट वो है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में, अपनी कैरियर में जिसने सॉल्व किया, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं. So be an expert. Be a leader who is proactive. Be a leader who is hunting. शिकार करना शुरू करो. शिकारी बनो अपनी बिजनेस के अंदर. अपनी टीम में जो भी प्रॉब्लम है, आपको हमेशा अपनी टीम के सामने ऐसे गर्व से, फक्र से कहना पड़ेगा कि जब तक मैं हूं तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा. या तो प्रॉब्लम रहेंगे या तो मैं रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं मेरे बिजनेस के अंदर हूं, मैं हूं, तो सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने में लग जाऊंगा. इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जब आप दोगे, आपको देखते ही आपके टीम मेंबर्स के अंदर ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए काइंड ऑफ अ जोश, देयर विल बी ए काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस व्हिच विल शूट अप. तो लीडर का मतलब वो होता है जो आदमी अपनी आज सुबह अनीश जी वही बोल रहे थे अपने प्रोजेक्ट 1K के अंदर कि वी आर सेलिंग होप. सो लीडर वो इंसान है जिसे देखते ही लोगों के मन में भरोसा, होप जो है वो बढ़ जाना चाहिए. उनको लगना चाहिए अच्छा अब हमारे अपलाइन आ गए यहां पर, तो अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, बिकॉज अपलाइन मेरे जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. तो आपके टीम मेंबर्स के माइंड में आपका इमेज कैसे बनाया आपने, ये एक बार आप चेक कर लो. अगर आपकी टीम मेंबर्स के माइंड में अगर लग रहा है कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट्स अ फैंटास्टिक इमेज. कभी कभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर ना हमेशा अपलाइन को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपलाइन को आप कैसे मोटिवेट करोगे, मैं बता रहा हूं आपको. अभिलाष जी, मेरे जो मेंटर अपलाइन हैं, वो हमेशा मेरे बारे में
कहीं जगहों पर, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरे सामने या मेरे पीछे कहीं जगह पर, मैं जहां पर भी नहीं रहता था वहां पर भी अभिलाष जी ने एक चीज लोगों को बताया कि जब तक प्रेम है तब तक उस प्रॉब्लम के बारे में मैं चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है व्हेन प्रेम इज देयर ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ। इस प्रकार का स्टेटमेंट अपलाइन के मुंह से, अपलाइन या मेंटर के मुंह से जब आप सुनोगे, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। अभी स्टार्टिंग में जो वीडियो यहां पर विष्णु जी ने प्ले किया, उसमें जो भी लोग बता रहे हैं यहां पर, ये सब मैंने उनको बोलने के लिए कभी नहीं कहा, ये खुद उनके एक्सपीरियंसेस से लोग बता रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है, अगर आपके बारे में फ्यूचर में जब डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा, एक दिन जब आप ब्लैक डायमंड बनोगे, आपके बारे में भी ऐसे 100-200 लोग कहने के लिए जब तैयार होंगे, तब वो ब्लैक डायमंड रैंक पर आप पहुंचोगे और उस वक्त आप कहलाओगे लोगों से कि माय अपलाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो कीप दिस एटीट्यूड ऑल्सो। तो आज का जो सेशन जो है, इसको समाप्त करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट ये है, यू हैव टू बी द ओनर ऑफ योर बिजनेस। आज के बाद अपने बिजनेस को ओनर की तरह देखिए, और ओनर इज समबडी हु इज ऑलवेज अ लीडर हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द डैमेजेस। अपने बिजनेस को जो उसकी जो सुरक्षा जो कर सकता है, वो एक लीडर है, वो एक ओनर है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, वो लीडर है, right? So this is the basic essence of becoming a owner in your business. Of course, business को grow करना भी हमारी जिम्मेदारी है। business को कैसे grow करना? Of course, vibrant Viva system को आप follow करोगे तो automatically आप business को grow कर सकते हैं। उसकी चिंता आप मत करिए, because that will be happening by your mentor and your appliance। वो लोग आपको जो करने के लिए कहते हैं वो काम करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि बढ़ती का नाम जिंदगी है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो बिजनेस को ग्रो करना भी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहां पर आपका जो बिजनेस है, इट इज ऑल्सो द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ऑटोमेटिकली कंपनी ऑल्सो हैज गॉट द वाइब्रेंट विवा सिस्टम, जिसके जरिए आपका बिजनेस जो है इट विल बी ग्रोइंग। तो जहां तक ओनरशिप की बात हम कर रहे हैं यहां पर, सो वन थिंग विच you need to keep in your mind is problems to be fixed, issues to be resolved। जितना जल्दी आप प्रॉब्लम्स को फिक्स करोगे, that is very very important as an owner। and second thing, जहां पर भी डैमेजेस हो रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, जहां पर भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रहा है, जहां पर भी रॉन्ग सेलिंग हो रहा है, ये सब कुछ आपको एक बार उस पर नजर रखना पड़ेगा, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस, you are the master of your destiny, and you are the architect of your life, and you are the CEO of your business। So आज का जो सेशन है, इसको यहीं पर समाप्त करते हुए मैं यही उम्मीद के साथ यहां से निकल रहा हूं आज की आज का सेशन जो है, इट हैज गिवन मोर क्लैरिटी। जैसे यहां पर लाइट है, लाइट आप देख पा रहे हैं यहां पर, यस राइट। सो इस लाइट की तरह यू शुड ऑल्सो शाइन इन योर बिजनेस, and you should also become the owner of your business। और ओनरशिप को हाथ में उठाइए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए, and become fantastic entrepreneurs, wellness entrepreneurs in this community commerce business of Indus Viva। So this is your friend, your companion, your partner, your coach and your mentor, Royal Black Diamond Ambassador Prem Kumar, signing off। Have a fantastic week ahead। आज Thursday है, Thursday, Friday, keep your focus on closings, and let us meet in the next webathon, जिसके अंदर we will be discussing yet another powerful subject, because powerful people make places powerful। So have a fantastic day ahead, my dear champions, my dear warriors। Over to Mr. Vishnu Saikia for the national anthem। So please stay back for the national anthem, and with Jai Hind, we will wind up today's session। Thank you so much, sir। Thank you so much, sir, for your valuable time and for this wonderful session। और ये सेशन से हम सभी लोगों ने यही सीखा, we have to take ownership of our business। कभी भी अपने बिजनेस में डैमेजर नहीं बनना है, मैनेजर बनना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू सो मच। अब हम सभी लोग नेशनल एंथम के साथ ये सेशन को
समाप्त करेंगे। सभी लोग एक बार खड़े हो जाइए और नेशनल एंथम। Please stand for the national anthem.